Hello students, welcome to this YouTube channel, The Quest, Maths for All by Toor Sir. This is Dr. RPS Toor और ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11th 12th ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਥੀਸ ਟੌਪਿਕਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਲਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਪਾਏ ਔਰ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕਲਾਸ 11th ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਚੇਅਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾइज है और इट्स इन द मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स यू कैन से दैट बट काउंटिंग प्रिंसिपल थानू आना चाहिए ठीक है इट इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ठीक है बट ये है क्या कई बार अपने को जिमें एक एग्जाम्पल ले लेने जिमें अपने को मान लो 3 पैंट ने और 4 शर्ट्स ने ठीक है वो किन्ने वेज ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਰਟਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਪੈਂਟ ਔਰ 4 ਸ਼ਰਟਸ ਨੇ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਔਰ ਸ਼ਰਟਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ 4 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 3 × 4 12 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ਰਟਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲ ਲਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਕੈਨ ਅਕਰ ਇਨ m different ways following which another event can occur in n different ways then the total number of occurrence of events in the given order is m cross n यानी कि अगर पहला इवेंट m वेज नाल occur हो रहा है और फॉलिंग उदू बाद कहने मतलब है एक बारी वो अकर हो गया उदू बाद फॉलिंग ठीक है अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज तो दोनों इवेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਹੋਣਗੇ m क्रॉस n ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ it is also called as I already told you कि the multiplication principle भी इनू ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਲੈਂਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ find the number of 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of letters is not allowed ठीक ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ 4 ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ ਨੇ 1 2 3 और 4 और ये लैटर्स लैने कित्थों है ये लैने आपां रोज़ तो ROSE तो जेड़ा भी 4 लैटर वर्ड बने उदा कोई मतलब होए चाहे ना हो वो नहीं कह रहा है
बट बनाना है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे ਉਹਦਾ मीनिंग है चाहे नहीं है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। ये लास्ट जो सेंटेंस है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ कि ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾउड ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾउड ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾउड नहीं ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ 4 ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 4 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ 3 ਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਲੈਟਰਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3 ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, 3 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ O ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ S ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ E ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀ ਚੁਆਇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ R ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ O ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ S ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ E ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ, ਬਾਕੀ 3 ਲੈਟਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਲੈਟਰਸ, ਚਾਹੇ मीनिंग है चाहे नहीं है, वो है ना, कह रहा है कोई मीनिंग लिखने चाहे ना निकले। हुण कितनी चॉइसेस रह गई, 2, और फोर्थ लैटर वास्ते की चॉइस रह गई, सिर्फ 1। तो ऑन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, टोटल वेज कितने हो जाएंगे अपने को, 4 × 3 × 2 × 1, 24 वेज टोटल बने कि एक नंबर ऑफ 4 लैटर वर्ड बनाने दे लई कि ਉਹਦਾ कोई मीनिंग निकले चाहे ना निकले, और रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ਤਾਂ 24 वेज ਬਣਦੇ ਨੇ। सपोज करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ कि रिपीटेशन इज़ अलाउड, रिपीटेशन इज़ अलाउड, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ वेज ਬਣਨਗੇ, राइट। ਤਾਂ फस्ट लैटर वास्ते किन्ने वेज ने, 4, रिपीट भी कर सकते हैं, फिर किन्ने ने, 4, थर्ड प्लेस वास्ते भी 4 ऑप्शन ने, और फोर्थ प्लेस वास्ते भी 4 ऑप्शन ने, क्योंकि लैटर बार बार रिपीट हो सकता है। तो किन्ने आंसर आया फिर, 4 पावर 4, ठीक है। और इन्हू सॉल्व कर लो, 256 आंसर आएगा, 4 पावर 4, 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 256, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਵਨ 4 ਫਲੈਗਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗਿਵਨ 4 ਫਲੈਗਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਗਨਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਜਨਰੇਟਿਡ ਇਫ ਅ ਸਿਗਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ 2 ਫਲੈਗਸ, one below the other। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਫਲੈਗ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਫਲੈਗ 1, ਫਲੈਗ 2, ਫਲੈਗ 3 और फ्लैग 4, ये चारों दे कलर्स डिफरेंट है। और इफ हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ दीज 4 फ्लैग्स इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो अपना नू सिग्नल्स बनाने हैं, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਬਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੈ। और सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर, ठीक। मतलब सेम फ्लैग तो नहीं आ सकते ना। इत्थे मान लो F1 आ गया तो फर्स्ट F1 या F2 या F3 या F4 आ गया, तो जो सिग्नल है वो वन अबव द अदर है, मतलब 2 फ्लैग्स तो मिलके एक सिग्नल बन रहा है। तो जो सिग्नल का फर्स्ट पार्ट जो है ਉਹਦੇ वास्ते ऑप्शन किन्ने बनते हैं, 4 ऑप्शन। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੈਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ F1 ਭਰਤਾ, ਚਾਹੇ F2 ਭਰਤਾ, ਚਾਹੇ F3, ਚਾਹੇ F4, ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, 3 ਵੇਜ਼ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਫਲੈਗਸ ਅਗਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। मतलब पहला जो बनता है सिग्नल का फस्ट पार्ट 4 वेज नाल भर सकते हैं, 4 फ्लैग अपने को ऑप्शन ने,
और जो 4 फ्लैग भरते तो 3 फ्लैग रह गए, हुण सैकेंड पोजीशन वास्ते अपने कोल 3 फ्लैग रह गए। तो टोटल सिग्नल्स फिर किन्ने आ गए बाय फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसीपल 4 into 3, तो 12 वेज के तरीके दे नाल वो फ्लैग्स नूं आपां वो सिग्नल्स जिहड़े ने वो आपां चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल विच कह रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट ईवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। एग्जाम्पल 3 दे विच देखो 2 डिजिट वर्ड आपां बनाना है। दिस इज योर यूनिट्स प्लेस और आ जड़ा हैगा वो टेंस प्लेस है, और बनाना की है ईवन नंबर। और 2 डिजिट ईवन नंबर अगर बनाना है तो अपन पता होना चाहिए कि हर एक ईवन नंबर का जोड़ा यूनिट प्लेस होंदा है वो एटलीस्ट ईवन होना चाहिए। हुण तुहाडे कोल चॉइसिस किहड़ियां ने 1 2 3 4 5। 1 3 5 जिहड़े ने ये ऑड नंबर ने, तो ये तो यूनिट प्लेस उपर नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी ईवन नंबर अगर लै रहे हैं तो वह यूनिट प्लेस तो एटलीस्ट ईवन होना चाहिए। तो अपने को सिर्फ 2 ऑप्शन ने जिहदे नाल यूनिट प्लेस जिहड़ा हैगा वो आपां फिल कर सकते हैं। तो की लिखांगे, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। 2 वेज केड़ा, या ये उपर 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। अपने को चॉइसिस 2 वेज दिया ने, 2 नंबर ये उपर आ सकते हैं, या 2 या 4, क्योंकि दोनों ईवन है। और टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन किन्ने वेज नाल होएगा। एक गल तुसीं ध्यान नाल देखो, ये कह रहा है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। ऐसा मतलब अगर यूनिट प्लेस के उपर आ 2 ईवन नंबर आ गए तो टेंस उपर भी ईवन नंबर आ सकते हैं, नंबर रिपीट हो सकते हैं। मतलब तुसीं इत्थे 2 लिखता तो इत्थे भी 2 आ सकता है, तभी वो ईवन नंबर बन जाएगा। अगर 4 लिखता तो 4 इत्थे भी आ सकता है। हाँ, यूनिट प्लेस उपर 5 3 1 नहीं आ सकते, तो यूनिट प्लेस तो सिर्फ 2 वे नाल होएगा, लेकिन 10 प्लेस जिहड़ा है उहदे उपर इन्हां 5 दे विचों कोई नंबर मर्जी आ जाएगा। तो फिर किन्ने चॉइस होए, 5 वेज होया। और 5 वेज किहड़े ने, 1 2 3 4 5, इन्हां 5 दे विचों जो मर्जी चॉइस का नंबर इत्थे आ जाएगा यूनिट्स प्लेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने हो गए, फिर टोटल वेज 4 2 डिजिट even number by fundamental principle of counting or principle of multiplication principle 2 into 5 total 10 ways ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ 2 digit even number ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ out of these choices. Fourth example is somewhat different from our previous example on the flags. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order one below the other. ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਲੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਸ 5 ਫਲੈਗਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ। on a vertical staff if 5 different flags are available on at least 2 ਫਲੈਗਸ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ at least means ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ, ठीक है, कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए जोड़े सिग्नल उपर वन अबव द अदर। तो अगर इतने देखो गल करो तो एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने कोल जोड़े सिग्नल्स बनने ने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, और अपने कोल चॉइसेस कितनी है, फ्लैग्स कितने ने 5 4 एंड 5 1 2 3 4 5 सिग्नल्स जोड़े बन रहे हैं। सुपोज करो कि वो कहता है 2 फ्लैग तो तुसीं घट्टो घट्ट लैने ही लैने हैं। तो जो आप 2 फ्लैग लै रहे हैं या हो सकता है कि 3 फ्लैग्स लैने हो तो एक सिग्नल बने, 4 फ्लैग्स लवीए तो एक सिग्नल बने, या 5 दे 5 फ्लैग लैके सिग्नल बनाइए, ठीक है। ये सारे वेज जोड़ के दसने हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स किन्ने बननगे अपने कोल। तो दिस प्लस दिस एटलीस्ट 2 होने चाहिए। हुण 5 फ्लैग्स दे विचों इहदे विच जदों आपां इस पोजीशन के उपर मान लो एक फ्लैग यूज़ कर लिया तो नंबर ऑफ वेज किन्ने बने
5 और दूसरे वास्ते किन्ने बने 4। तो नंबर ऑफ वेज इत्थे बननगे, नंबर ऑफ वेज फस्ट वास्ते बननगे 5 इंटू 4 बाय फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग प्लस जो 3 फ्लैग लैके सिग्नल बनाना है तो फस्ट वे चॉइस कितनी है 5 दी, जो एक फ्लैग ले लिया बाकी दे चॉइस कितनी बची, डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं ना, सेम फ्लैग नहीं आ सकता, इस करके रिपीटेशन नहीं होएगी, मतलब 5 इत्थे आ गए 5 इत्थे आ गए, हो सकता है फिर सेम आ जाए फ्लैग। तो जो एक फ्लैग ले लिया, मान लो F1 ले लिया या फिर इन्होंने विचों जो मर्जी ले लिया, तो 5 वेज ने ना, जो एक बारी ले लिया बाकी वास्ते तो फिर चार वेज ही बचे। ठीक है, हुण फस्ट जो 3 फ्लैग लैके सिग्नल बनाना है तो फस्ट पोजीशन ते 5, दूसरी पोजीशन ते 4 वेज और थर्ड पोजीशन ते 3 वेज, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस जदों 4 फ्लैग लैके सिग्नल बनाना है फस्ट पोजीशन वास्ते 5 वेज ने, दूसरे पोजीशन वास्ते 4 वेज ने, थर्ड पोजीशन वास्ते 3 और फोर्थ पोजीशन वास्ते 2 वेज ने, तो नंबर ऑफ वेज बननगे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल 5 4 3 2 प्लस जो पंजों के पंजों फ्लैग लैके आप सिग्नल बनाना है तो 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सारे वेज जोड़ दो, दैट विल बी नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स 20 120 120 240 300 और 320 डिफरेंट वेज बने डिफरेंट सिग्नल्स नू बनाने दे लई। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू रीड विद योर बुक हेयर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ बुक सामने रखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रीड करो की है फर्स्ट क्वेश्चन और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ पिक भी पा ਦਾਂਗਾ फर्स्ट क्वेश्चन ਦੀ। हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 assuming that first part is repetition of the digits is allowed, second part is repetition of the digits is not allowed। कितना आसान क्वेश्चन है जो आप एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हैं, अपने को नंबर ऑफ डिजिट्स कितने ने 1 2 3 4 एंड 5 और 3 डिजिट लैटर वर्ड जो है वो बनाना है। फर्स्ट पार्ट दे विच है कि लैटर का जिहड़ा रिपीटेशन है वो अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस उपर कितने वेज ने अपने को, नंबर ऑफ वेज वैन द रिपीटेशन इज अलाउड 5 वेज नाल आपां रिपीट कर सकते हैं, कोई भी लैटर इत्थे भर देंगे, दूसरे भी 5 है, जो मर्जी लैटर भर दो, 5 वेज आ गए ना अपने को, 5 तरीके ने, 5 अपने को चॉइसिस ने, सैकेंड प्लेस नूं भरन लई भी 5 चॉइसिस ने और थर्ड प्लेस नूं भरन दे लई भी 5 चॉइसिस ने, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अपने को कितने बने 5 इंटू 5 इंटू 5 125 वेज अपने को बन गए। सैकेंड है रिपीटेशन ऑफ द लैटर्स आर नॉट अलाउड। फस्ट प्लेस जो आप भरांगे तो किन्ने चॉइसिस अपने को 5, हुण रिपीटेशन नहीं है, 5 चॉइसिस विचों एक चॉइस आप ले ली, हुण अपने को 4 चॉइसिस रह गई, कोई भी 4 चॉइसिस। सैकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने आ गए अपने को व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स और डिजिट्स आर नॉट अलाउड। टोटल नंबर ऑफ वेज आर 5 इंटू 4 इंटू 3 60 वेज। बोलो समझ आ गया, ये डिफरेंट तरीका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने को, सैकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट नज़र आ रही है थानू, हाउ मैनी 3 डिजिट ईवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हुण 3 डिजिट ईवन नंबर तुसी पता करने हैं, ईवन नंबर, ठीक है, वो भी 3 डिजिट होने चाहिए ने। जिवें आपां ले लीए मान लो 5 7 2 है ना, आ 2 तो ऑड ने, आ ईवन है, तो कोई भी ईवन नंबर है वह जिहड़ा यूनिट्स प्लेस होएगा ना, आ यूनिट्स प्लेस, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ऐसा आप क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, और ये हंड्रेड्स प्लेस हो गया फिर। ठीक है, हुण क्योंकि 3 डिजिट आपां जिहड़ा हैगा वो अपना लैटर बनाना है,
डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो ईवन नंबर है। हुण अपने को चॉइसिस किहड़ी दित्तियां होईयां ने 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 आ दिते ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 2 4 ਐਂਡ 6। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ 3 ਵੇਜ਼। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਦਾ ਡਿਜਿਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਿਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਹੰਡਰਡ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ can be filled in 6 ways, hundreds place can be filled in 6 ways। the total number of ways ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 digit even number ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, that is 3 into 6 into 6 36 108 ways ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 3 digit ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ by taking these 6 letters 1 2 3 4 5 6, taking these 6 digits। our third question ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ how many 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਲੈਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? फस्ट 10 ਲੈਟਰਸ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੈਟਰਸ ਗਿਣ ਲਓ ਫਿਰ A B C D E F G H I J A to J ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੈਟਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 10 ਲੈਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਦੇਖੋ, पहला जो आप कोड लिखांगे तो A to J तक कोई मर्जी चॉइस है तुहाडे कोल 10 वेज हो गए। दूसरा भरांगे तो 10 वेज आ गया ना, रिपीट नहीं करने। नीचे कह रहा है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होएगा। तो अगले वास्ते 9 चॉइसेस हैं, फिर 8 चॉइसेस हैं, फिर 7 चॉइसेस हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो। हुण 9 8 72 7 दूनी 14 49 ते 50 5040 वेज अपने को आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आओ हुण। 4 कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once। यानी कि कोई भी डिजिट जिहड़ा हैगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए और हर एक डिजिट जिहड़ा है वो 6 7 तो स्टार्ट होना चाहिए। 6 7 तो उन्हें फिक्स कर दिता। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ पहले 2 डिजिट ने उन्होंने वास्ते तो 6 और 7 ही है, एक एक चॉइस ही है उन्होंने कोल। वो 0 to 9 ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि टोटल 10 चॉइसिस अपने को देता। 10 अपने कोल जिहड़े ने वो डिजिट्स देते उन्हें, ठीक है। हुण बनाना की है आपां 5 लैटर अपना एक बना के दिखाना है आपां, है ना। उहदे विच 5 लैटर्स होने चाहिए ने और पहले 2 जिहड़े ने उन्हें आपां नूं फिक्स कर दिता कि आ जो फस्ट और सैकेंड पोजीशन है ये 6 और 7 आना चाहिए है। तो फस्ट और आ फस्ट पोजीशन है, आ सैकेंड पोजीशन है, आ थर्ड पोजीशन है, आ फोर्थ है। 5 लैटर वर्ड बनाना ना आप इन्होंने विचों, है ना। 5 लैटर एक आप जिन्होंने कह सकते 5 डिजिट वर्ड बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक ओके। तो 5 डिजिट नंबर बनाना है। फस्ट और सैकेंड पोजीशन जिहड़ी हैगी है, फस्ट पोजीशन नूं किन्ने तरीके नाल भर सकते हैं? कैन बी फिल्ड इन 1 वे ओनली, फिक्स कर दिता कि 6 और 7 ही आना चाहिए। सैकेंड पोजीशन नूं भी सिर्फ एक तरीके ना भर सकते हैं कि 7 नंबर ही आ सकता है उपर वो। तो आ दोनों का खत्म हो गए, ठीक है। टोटल नंबर अपने किन्ने बच गए? हुण 8 बच गए।
थर्ड विच लैटर रिपीट नहीं होना चाहिए है ना। हुण थर्ड पोजीशन विच अगर आप कोई नंबर भरना है इन्हां विचों तो अपने कितनी चॉइसिस ने 8 चॉइसिस ने। इत्थे अपने कोल इत्थे आपां 6 और 7 भरना है ना तो 6 और 7 तो आपां फिक्स ही कर दिता कि इत्थे 6 आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ चॉइसिस कितनी आ गई 1 और इत्थे 1 और थर्ड तो कितनी आएगी फिर अपने कोल 8 चॉइसिस ने। हुण जदों आ भी निकल गया 10 विचों 3 नंबर निकल गए। फोर्थ विच कितना है थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। फोर्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 7 वेज और फिफ्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन जदों आ 7 नंबर भरते तो हुण 4 निकल गए बाकी 6 ही रह गए ना तो 6 वेज ना हो गया। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनणगे 1 into 1 into 8 into 7 into 6 right। दिस इज योर 336 ओके ये आंसर आ गया तुहाडा। फिफ्थ क्वेश्चन तुहानू कह रहा हो कि एक कॉइन है जिहदे हैड और टेल होंदा अपने कोल वो 3 वारी टॉस की गई है। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर कितनी पॉसिबल आउटकम्स उहदियां हो सकदियां ने। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5th स्टेटमेंट इज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जदों आपां फस्ट टाइम उन्होंने टॉस किया तो अपने कोल कितनियां आईयां आउटकम्स सैकेंड टाइम और थर्ड टाइम। हुण एक कॉइन दे विच जदों आपां टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स की हो सकदियां ने हैड और टेल ठीक है। सैकेंड बार करांगे तो कितनी आएगी हैड और टेल। थर्ड टाइम हैड और टेल तो इत्थे कितने वेज आ गए अपने कोल 2 आउटकम्स आ गए ना। इत्थे भी 2 का आउटकम्स आ सकदियां ने इत्थे भी 2 आउटकम्स आ सकदियां ने। 6th वाला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा बिल्कुल सेम ही है कि तुसी एक फ्लैग तैयार करना है फ्लैग यानी कि फ्लैग्स तो सिग्नल तैयार करना है और वो सिग्नल विच 5 डिफरेंट फ्लैग्स तुहाडे कोल हैगे ने F1 F2 F3 F4 F5 उन्हां तो डिफरेंट कलर्स ने। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो आप नंबर ऑफ सिग्नल्स देखने हैं नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स और ये सिग्नल्स किहदे नाल बन रहे ने फ्लैग्स नाल जो वन अबव द अदर है। कितना आसान है ये जे आप एग्जाम्पल भी कर ली है ना तो वही आंसर है। आंसर भी सेम है सेम ही क्वेश्चन आ गया। तो सिग्नल है फस्ट जिहड़ा फ्लैग दी आपां जो फस्ट पोजीशन जो भरांगे सिग्नल दी तो अपने को कितने चॉइसिस ने 5 डिफरेंट सिग्नल बनाने ना आपां तो सेम सिग्नल नहीं सेम मतलब फ्लैग नहीं लेना। दूसरी जो पोजीशन भरांगे तो कितने चॉइसिस ने 4 तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कितने हो गए अपने को 5 into 4 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो 20 वेज दे नाल यू कैन जनरेट डिफरेंट सिग्नल्स ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 6.1 परमुटेशन एंड कंबीनेशन आज शुरू किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाई है। नेक्स्ट टाइम इन माई नैक्सट लैक्चर वी शैल स्टार्ट विद परमुटेशन टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग टॉपिक होने वाला है एंड तुसी फटाफट तुसी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। देखो आधे घंटे की एक्सरसाइज है 2-3-4 एग्जाम्पल्स ने और 6 को क्वेश्चन ने और आपस में जो मिल भी रहे हैं सेम है सिबलिंग्स ने क्वेश्चन मतलब आपस में भैन भरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया आया उन्हें करना सारा हुई है मल्टीप्लाई करनी है। रिपीटेशन है तो सारे लैटर्स नू रिपीट कर दो और अगर रिपीटेशन नहीं है तो जिन्ने भी लैटर दिते हैं एक एक माइनस करते रहो बस। जिमें 10 है 10 9 8 7 है ना आ चीज़ है बस। 5 जिमें ये फ्लैग दिते हुए ने तो फस्ट पोजीशन 5 होगी सैकेंड पोजीशन 4 वेज नाल भरी जाएगी मल्टीप्लाई करो आंसर। कितना ईजी है ना ये 6.1 एक्सरसाइज। सो नाउ वी शैल मीट इन माई नेक्स्ट लेक्चर फॉर द परमुटेशन